Hello dear students, welcome back to advertising management class. In previous session of this particular unit 3, we have discussed about the promotional objectives. Today we are going to discuss a very important topic, that is DEGMAR approach. Actually ये DEGMAR approach जो है long answer type questions में आती है और advertising management में बहुत ही important topic है, exams में 110% हर बार ही आता है. So we'll discuss it. Let's start. The DEGMAR approach of advertising was devised by Mr. Russell Coley. Yes, ये important line है. You should remember this. Who has given this approach? So Mr. Russell Coley has given this approach. Now what is DEGMAR? DEGMAR is a concept used in advertising to set advertising objectives and goals. See, सबसे पहले आप ये समझो कि आप DEGMAR approach क्यों पढ़ रहे हो. See, advertising जो है उसको हम क्यों दे रहे हैं एज अ कंपनी, एज अ फर्म एक एडवर्टाइजिंग क्यों दी जा रही है और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो एडवर्टाइजिंग बनाते टाइम कुछ ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स डिसाइड किए जाते हैं और वो डिसाइड किए जाते हैं अंडर DEGMAR अप्रोच. ठीक है. एंड देन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रोच? DEGMAR, D stands for defining, A stands for advertising, G stands for goals, M stands for measurement, and A stands for advertising, R stands for result. So defining advertising goals to measure advertising results, right? This is the full form. We'll continue in more detailed manner. Defining advertising goals for measuring advertising results. It is basically an approach to advertising planning for quantifying goals and using these goals to measure performance. Actually जो DEGMAR word है इसको 2 parts में divide कर सकते हैं. DAG stands for defining advertising goals. पहले तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि एडवर्टाइजिंग का गोल क्या होगा. So the define advertising goals over here. Then MAR for measuring advertising results. उन गोल्स को जिनको बनाया गया है कि एडवर्टाइजिंग कैसी होनी चाहिए, कितने बजट की होनी चाहिए, किस टारगेट कस्टमर पर होनी चाहिए, तो ये जो गोल सेट किए हैं उनको दिखाने के बाद कंपनी इज़ गोइंग फॉर मेजरमेंट दैट हाउ इफेक्टिव इट इज़. सो मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट कि उस एडवर्टाइजिंग का प्रॉपरली रिजल्ट अल्टीमेटली क्या हुआ. राइट. यहाँ पर हमने पढ़ा इट इज़ बेसिकली एन अप्रोच टू एडवर्टाइजिंग प्लानिंग फॉर क्वान्टिफाइंग गोल्स and using those goals to measure performance, right? An advertising objective involves a communication task. See, this is very important. एक एडवर्टाइजिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? अगर एक कंपनी आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट दे रही है तो उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? देयर ऑब्जेक्टिव इज टू कम्युनिकेट, राइट? सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टास्क. नंबर 1, it is intended to what? It is intended to create awareness, right? एक communication आपको क्या कर रहा है? प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर रहा है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स एंड फीचर्स से इन्फॉर्म करा रहा है. सो इम्पार्टिंग अबाउट इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपिंग द एटीट्यूड अबाउट the product. Can be positive, negative, but exactly advertising always willing to show you the or have your attitude that should be always positive and induce action. Why that advertisement? Because they want, the company want that a customer should take action. So advertising objective क्या होता है? advertising objective एक communication task है जो कि इसलिए बनता है कि कस्टमर अवेयर हो सके और कस्टमर को इंफॉर्मेशन मिल सके, डेवलप हो सके एक एटीट्यूड कस्टमर के माइंड में टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड इंड्यूस करे, वो एक्शन करे, एक्चुअली प्रोडक्ट को परचेज करे. राइट. So this was all in brief about the DEGMAR approach. Now we are going to discuss the approach. So this approach is divided into 2 parts. As I told you, DAG, defining advertising goals. So here in first part we will discuss about creation of communication task to achieve goals. यानी कि एक communication task जो कि एक objective है. अभी हमने इसमें थोड़ी देर पहले पढ़ा कि advertising objective क्या है? एक communication task है. राइट. सो ऑफकोर्स येस, उस कम्युनिकेशन टास्क को हम क्रिएट करेंगे सो दैट एक गोल अचीव कर सकें एज अ कंपनी. राइट. सेकेंड, MAR को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इन स्टेप 2.
defining the objective of the communication task in a manner that results can be measured. So basically यहाँ पर जो भी हमने objectives को create किए थे उनको define करके उनको measure किया जाएगा, right? So we are going to start from the first point, that is what? Creation of communication task to achieve goals. Here, see, creation of a communication task to achieve goals can be understood as ACCA akka. That means A stands for awareness, C stands for comprehension, C again stands for conviction and A stands for action. आपकी रिमेम्बरेंस के लिए, आपकी मेमोरी के लिए यू शुड नो दैट कि ये जो ACCA है ये फर्स्ट स्टेप के 4 पार्ट है, राइट? DAG के डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स के स्टेप 1 क्रिएशन ऑफ अ कम्युनिकेशन टास्क टू अचीव गोल्स, कैसे कम्युनिकेट करना है, इसके 4 पार्ट है. सो फर्स्ट इज अवेयरनेस. व्हाट डज इट मीन? सी, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द इंडिविजुअल विल बी अनअवेयर ऑफ द प्रोडक्ट और ऑफर इन द मार्केट. द इनिशियल कम्युनिकेशन टास्क of the advertising activity is to increase consumer awareness, right? यानी कि सबसे पहले एक एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर के माइंड में अवेयरनेस क्रिएट की जाए टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, राइट? सेकेंड इज टू कॉम्प्रीहेंस. दैट मीन्स कॉम्प्रीहेंशन कैसे आएगा? यहाँ तो बता दिया गया कि दिस इज द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट. सेकेंड कॉम्प्रीहेंशन में क्या बताया जा रहा है? वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपेटिटर. तो आपको ये बताया जा रहा है कि हम ही क्यों एज अ प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टीजमेंट. सो कॉम्प्रीहेंशन मीन्स द सेकेंड स्टेप ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द प्रोडक्ट और ऑफर एंड इन्वॉल्व्स द टारगेट ऑडियंस लर्निंग समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट और ऑफर. That means in what way does it different from its competitors and whom is it supposed to benefit. यानी कि कॉम्प्रीहेंड का मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो कंपेटिटर से अलग क्यों है, आपको क्यों परचेज करना चाहिए, एंड होम इज इट सपोज टू बेनिफिट, ये किसको बेनिफिट पहुंचाएगा, किसके लिए बेनिफिशियल होगा. सो दिस इज़ व्हाट एक एडवर्टाइजिंग का गोल है, जिसमें सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, देन कॉम्प्रीहेंशन क्रिएट की जा रही है इन द माइंड ऑफ द कस्टमर कि बाकी लोगों से डिफरेंट क्यों हैं. थर्ड इज हियर conviction. What does it means? The third step is the attitude or conviction. That means and the action phase involves some move by the buyer, such as trying a brand for the first time, visiting a showroom or requesting information. कन्विक्शन का मतलब है कि पूरी तरह से कस्टमर के माइंड को सेट कर देना, उसके माइंड को बना देना कि ये प्रोडक्ट ही अच्छा है, राइट? पहले तो ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट की कि दिस इज़ द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट. कॉम्प्रीहेंशन सिर्फ ये बताया कि बाकियों से अलग क्यों है. कन्विक्शन ये बता रहा है कि आपको यही लेना चाहिए बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू, राइट? तो कन्विक्शन, द एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर टूवर्ड्स द प्रोडक्ट. And the fourth is action. Action ultimately is taken by the customer. Customer ही है जो finally decide करेगा कि that product is exactly yes to buy or not, right? So these were the first steps of the Dagmar approach जो कि हमने पढ़े in creation of a communication task. क्योंकि Dagmar approach को आप 2 पार्ट में डिफाइन करोगे. फर्स्ट creation of communication task to achieve goals and third or second one is your defining the objectives of communication task in a manner that the result can be measured. So पहले goals को define करना है, सेकेंड में goals को measure करना है, right? यहाँ पर जो हमने first part पढ़ा that was the creation of communication task, awareness, comprehension, conviction and action, ACCA. You need to remember this point. Now इसको हम डायग्राम में भी कन्वर्ट करेंगे बिकॉज आपको ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है. सो यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सो अनअवेयर कस्टमर को सबसे पहला पॉइंट अवेयर करना, कॉम्प्रीहेंशन में लाना, एटीट्यूड यानी कन्विक्शन क्रिएट करना एंड एक्शन. ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, अवेयरनेस, कॉम्प्रीहेंशन, कन्विक्शन एंड एक्शन. ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट.
Now second very important part of DEGMA, defining the objectives of the communication task in a manner that the results can be measured. अब उन communication task को जो हम decide कर चुके हैं goal को, उन goals को हमें क्या करना है, ऐसे manner में define करना है so that results can be measured. So in second part we are going to define the measures. So measurable objectives क्या होते हैं, जब आप उस particular advertising को measure करते हो तो उसके भी certain objectives हैं. Number one, concrete and measurable task means for a promotional campaign there must be an objective which is measurable. The measurable objective must be written clear and unambiguous. Means objectives कैसे measure होने चाहिए, जो कि clear हो, concrete हो और मेज़र किए जा सके क्वांटिटी वाइज. सपोज एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट का ये गोल है और वो मेजर करेंगे इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ आवर स्टोर बाय 10%, नॉट एनी वेग स्टेटमेंट. नाउ दे आर नोइंग कि उनको 10% तक कस्टमर को अवेयर कराना है, तो दैट इज़ वेरी मच कंक्रीट एंड मेजरेबल टास्क, राइट. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज एग्जाम्पल, येलो पेजेस, जस्ट डायल एडवर्टीजमेंट. द मेजरेबल measurement could be the number of phone calls received before and after the ad. पहले इनिशियली जब ऐड नहीं दिया जा रहा था तब कितने फ़ोन कॉल्स होते थे, और अब जब ऐड दिया जा रहा है जस्ट डायल का तब कितने ऐड हो रहे हैं. सो दिस इज़ पर्टिकुलरली द कंक्रीट एंड मेजरेबल टास्क एग्जाम्पल, right. Next in this particular part, second one is, this was the first one, concrete and measurable. So objective should be concrete and measurable. Second one is define the target audience. See, एक कंपनी को एडवर्टीजमेंट देते टाइम ये पता होना चाहिए कि उसके टारगेट ऑडियंस कौन है. सो नॉट जस्ट एवरीवन इज गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट, सो क्रूशियल टू आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस टू होम मार्केटर्स आर गोइंग टू द एम देयर एड कैंपेन, राइट. उनको पता होना चाहिए कि वो बच्चों के लिए है या मेल्स के लिए या फीमेल्स के लिए या ओल्ड एज के लिए, एटलीस्ट किसके लिए वो टारगेट मार्केट उनका क्या है. एग्जाम्पल, इफ ए मार्केटर इज सेलिंग प्रीमियम कार्स, हाई वैल्यू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मार्केटर शुड टारगेट कस्टमर्स हु हैव high net worth and are sophisticated. The specific goal may be defined as increase awareness of our store from the current level of 20% to 30% among the owners of product A. यानी किसी भी प्रोडक्ट ए के लिए अगर अवेयरनेस क्रिएट करनी है कस्टमर के माइंड में तो 20 to 30% तक करनी है. सो दैट इज व्हाट टारगेट ऑडियंस पता है. यहाँ प्रोडक्ट ए आई एम मेंशनिंग व्हाई, बिकॉज दे नो हु आर द टारगेट ऑडियंस, राइट. नाउ the third one is degree of change sought. See, the objective should be specify how much change or movement is being sought, such as an increase in awareness level, creation of favorable attitudes or number of consumer intending to purchase the brand. That means कि एक ad goal करने के बाद, ad दिखाने के बाद कितना percentage change हो रहा है customers में. So a benchmark is also prerequisite to the ultimate measurable of result and an initial part of any planning program and DEGMAR in particular. एक benchmark set करके चलते हैं. Example, increase awareness of our store from current level of 20 to 30%, यानी current level से 20 to 30% तक awareness increase करनी है. तो degree of sort change कितना है, इस level से लेके उस level तक. The benchmark is already set initially. Now the last one in defining the define the time period. Actually the time period means what? An advertising campaign cannot run for eternity, right? There should be a fixed time period, 6 months or a year, within which advertisers should aim at attaining certain goals. There should also be some time allocated to test the campaign, make amendments if required to campaign. यानी कि हर एडवर्टीजमेंट का एक सेट ऑफ टाइम होता है कि वो कस्टमर को कितने टाइम तक दिखाना है, राइट. जब तक मे भी हो सकता है अगर वो टीवी में ऐड है तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली किस टाइम तक आना चाहिए, और अगर अभी इनिशियली दिखा रहे हैं तो 1 साल के लिए होगा, 6 महीने के लिए होगा, 2 महीने के लिए होगा. सो दे डिसाइड द टाइम पीरियड इन एडवांस, राइट, इन मेजरमेंट. सो इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ आवर स्टोर, दैट इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट वन, right, and current level of 20 to 30% among the owner of product X or A within the next 6 months. So everything is decide over here. जो हमने 4 पॉइंट पढ़ा, इन 4 इस एग्जाम्पल में चारों कंप्लीट होते हैं. concrete and measurable and defining the target audience, degree of sort change and time period. So all four are covered here. Increase awareness of our store, current level ये benchmark set कर दिया of 20 to 30% among the owner of product X. यहाँ पर divide कर लिया target market and within the next 6 months, that is the time period.
राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेगमार अप्रोच एंड इन दिस मेजरिंग रिजल्ट ऐसे भी कर सकते हैं. अवेयरनेस इन्वॉल्वमेंट ट्रेड ऑफ बनाते हैं. लेफ्ट साइड अवेयरनेस, राइट साइड इन्वॉल्वमेंट. हाई लो हाई लो. अवेयरनेस अगर हाई है, इन्वॉल्वमेंट हाई है कस्टमर का, तो वो लेवल सस्टेन करके चलेंगे. अवेयरनेस लो है और इन्वॉल्वमेंट हाई है, तो क्या जरूरी है कंपनी के लिए, और अवेयरनेस क्विकली क्रिएट करना है. अवेयरनेस अगर हाई है और इन्वॉल्वमेंट लो है, सो रिफाइन अवेयरनेस, दोबारा से रिपीट करना है. अवेयरनेस लो एंड इन्वॉल्वमेंट लो, तो एसोसिएट करना है प्रोडक्ट क्लास को कस्टमर के साथ. सो दिस वाज ऑल अबाउट